Good morning, everyone. So today we're going to have a very gentle yoga series where we're going to stretch ourselves and just release whatever we have, sometimes we just hold on the body parts as well on the emotions. So today we'll try to release each and everything and just get free from all the worries, all the stress. So let's start, everyone. Keep your palm on your knees and very slowly and gently close your eyes. Now focus at the tip of your nostril and just observe your breathing. With every exhalation, calm more and relax more. Now join your hands, everyone. We're going to say a prayer. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sah Viryam Karvavahe Tejasvinavaditamastu Mahavitvishavare. Om Shanti Shanti Shanti. Very gently and slowly open your eyes. Now place your right palm by your side and stretch your left hand up. Stay there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come back. Change. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Come back again. Stretch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change again. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Come back and relax. Now keep your palm on your thighs and round your back. Tuck your chin towards your shoulder. Towards your chin, sorry. Arch your back and look up. Now then go in. Arch and come out. Round your back, go in. Arch your back and come back. Round your back. Arch your back. Now come in the center. Now take the yoga block by your side. Keep the yoga block by both your side like this. So this is the yoga block. If you don't have, you can refer today. You can keep anything like which has a this kind of shape. Now place your right foot on your left thigh like this. Ardha Padmasana. Now inhaling, raise your right hand up
make a namaste. Now shift your spine towards the left side like this. Place the elbow on the block and go for a side stretch. And now stay here for 30 seconds. After going here, close your eyes, open your chest towards the ceiling and stay. Now come back and relax yourself. One more time, same action. Left hand in Ardha Namaste. Stretch your right hand up. Shift your spine. Place your elbow, forearm on the block and push your chest towards the ceiling and stay here with eyes completely closed. Now surrender wherever you have reached. Now come back everyone and relax yourself, relax your leg. Now place the left foot on your right thigh. Now inhaling, raise your right hand up, make a Ardha Namaste from your right hand. Shift करनी है spine को, हाथ को आपको block पे place करके side stretch लेना है and stay here. Come back. Now one more time. Keep your right hand in Ardha Namaste, other hand up. Shift your spine, place your forearm and push towards the sky and stay there. Now slowly come up and relax. Now sit comfortably. Now hold your right thigh, आपके right thigh को के ऊपर आपका left hand ऐसे रखना है और साइड में ट्विस्ट होना है एंड स्टे करना है. Come back. चेंज अदर साइड. अब राइट हाथ जाएगा आपके लेफ्ट थाई पे एंड स्ट्रेच. नाउ कम बैक एंड रिलैक्स. नाउ एक ब्लॉक को आपको ऐसे आपके सामने रखना है, वज्रासन में जाके बैठ जाना है. दोनों हाथों से ब्लॉक को ऊपर करके स्ट्रेच करना है और सामने देखना है. आपके दोनों हाथ स्ट्रेट है. होल्ड करना है ब्लॉक को 20 सेकेंड्स के लिए. और धीरे से फॉरवर्ड बेंड पे आना है और दोनों हाथों को ब्लॉक के ऊपर रख देना है और हेड को जो है आपके हेड को जाने देना है जमीन की तरफ. होल्ड करना है यहाँ पे. अब आपका लेफ्ट हाथ ब्लॉक पे ही रखो और राइट हाथ को ऐसे साइड में स्ट्रेच करने दो, साइड में जाने दो और आपका हेड जो है वो भी राइट की तरफ जा रहा है.
नाउ कम बैक इन द सेंटर। अब दूसरी बाजू जाएंगे, लेफ्ट की तरफ हाथ को लेके जाओ, लेफ्ट हाथ को, और आपके हेड को भी लेके जाओ। धीरे से हाथ को वापस लेके आ जाना है, दोनों हाथों को ब्लॉक पे रखना है, और धीरे से वापस जैसे हम गए थे वैसे ब्लॉक को उठा के आपको बैठ जाना है। अब ब्लॉक को राइट हाथ में रखना है आपको, लेफ्ट हाथ को पीछे ऐसे आपके हिप की तरफ जाके स्ट्रेच करना है, और लेफ्ट की तरफ देखना है, होल्ड करना है। वापस सेंटर में आना है, हाथ को चेंज करना है, अगर हमारे पास ब्लॉक नहीं है तो हम दोनों हाथों को ऐसे स्ट्रेच करके भी सेम चीज कर सकते हैं, पर जब आप ब्लॉक के साथ करते हो तो आपको एक ज्यादा स्टेबिलिटी फील होती है, आपको फील होता है ज्यादा फर्म हो। कम बैक, चेंज। कम बैक इन द सेंटर, एंड एक बार और लास्ट टाइम स्ट्रेच करेंगे अच्छे से, एंड रिलैक्स। अब यहाँ से आपको दोनों पाम को रखना है फ्लोर पे, और यहाँ से टर्न करना है अपने आप को डाउनवर्ड डॉग की पोजीशन में, होल्ड करना है डाउनवर्ड डॉग की पोजीशन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ से आपको राइट पैर को दोनों हथेलियों, दोनों पाम के बीच में ले आना है ऐसे, और लेफ्ट घुटने को फ्लोर पे रख देना है, सामने देखना है। अब धीरे धीरे जो ये पैर है, राइट पैर, इसके घुटने को ऐसे सीधे करने की कोशिश करेंगे, और धीरे धीरे नीचे फॉरवर्ड बेंड में जाएंगे। वापस एक बार आगे स्ट्रेच करेंगे, एंड वापस से पीछे स्ट्रेच। सो आज की क्लास पूरी जो है उसमें आपको सिर्फ सरेंडर करना है, लेट गो करना है। आप जहां पे भी हो, जितना आपसे हो रहा है, बस वहां करके आपको फील करना है कि मैं अब इन सब से फ्री हूँ। किसी भी बॉडी पार्ट को पकड़ के नहीं रखना है आपको, आप जितना कर सकते हो आपको उतना ही करना है। यहाँ से फ्रॉम अप, पैर को आगे स्ट्रेच करना है, हाथों को दोनों को नमस्ते में जोड़ देना है, और ऊपर आपको अपने अंगूठे को देखना है, होल्ड करके रखिए। दोनों हाथों को नीचे लेके आके दोनों हाथों को आपके कमर पे रखिए, पैर को यहाँ से धीरे से लेके साइड में ऐसे स्ट्रेच कर दीजिए। आपका लेफ्ट नी और आपका राइट हील दोनों सेम लाइन में है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, स्लाइड करना है। राइट हाथ को स्लाइड किया, अगर आप अंगूठा पकड़ सकते हो राइट, तो अंगूठा पकड़ लेना है, और दूसरा हाथ जो है ऊपर से स्ट्रेच हो रहा है, स्टे करना है।
कम बैक। यहाँ से इसी पैर को ऐसे बेंड कर देना है घुटने को, और अभी फ्लोर की तरफ जाना है आपको। होल्ड करके रखेंगे। कम बैक, दोनों हाथों को फ्लोर पे रखेंगे एंड यहाँ से वापस जाएंगे डाउनवर्ड डॉग की तरफ। होल्ड करना है डाउनवर्ड डॉग को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब लेफ्ट पैर को दोनों हाथों के बीच में लेके आना है और राइट नी को फ्लोर पे रख के सामने देखना है। अब धीरे से नी को स्ट्रेट करना है, आपके लेफ्ट वाले नी को, और धीरे से आपको फॉरवर्ड बेंड, यानी कि आपको सरेंडर करना है टुवर्ड्स द ग्रेविटी। सरेंडर करने के बाद नाउ फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। आप जितना एक्सेल इनहेल करोगे उतनी बॉडी आपकी लूज होती रहेगी। नाउ स्ट्रेच फॉरवर्ड, वापस एक बार। एक बार और चेंज करके अंदर की तरफ जाएंगे, नी को स्ट्रेट करेंगे और सरेंडर करेंगे। नाउ अगेन आगे पुश करना है, आपको ऐसे खड़े हो जाना है, दोनों हाथों को ज्वाइन करना है, हिप को आगे पुश करके आपके अंगूठे को देखना है। अब वापस आ जाना है, कमर पे हाथ रख के इस पैर को जाने देना है राइट की तरफ। राइट पैर को जाने दिया राइट की तरफ। अब राइट सॉरी लेफ्ट को जाने दिया लेफ्ट की तरफ। अब लेफ्ट हाथ से स्लाइड करते हुए राइट हाथ को ऊपर से स्ट्रेच। कम बैक, यहाँ से पैर को थोड़ा सा घुटने को बेंड करके पुश करना है एंड होल्ड। कम बैक, दोनों हाथों को वापस फ्लोर पे रख के डाउनवर्ड डॉग में जाना है एंड होल्ड करना है। धीरे से दोनों घुटनों को जमीन पे रखो एंड रेस्ट इन अ चाइल्ड पोज। now दोनों पाम को प्रेस करके वापस से जाना है डाउनवर्ड डॉग में। डाउनवर्ड डॉग में जाने के बाद आप क्या करोगे, दोनों हाथों से ऐसे पीछे वॉक करके फॉरवर्ड बैठ में आ जाओगे एंड होल्ड करेंगे फॉरवर्ड बैठ।
से कमर पे हाथ रख के ऊपर आ जाना है। नाउ आप लोग इसको आपके सामने ऐसे प्लेस कर देना है। आप जितने कंफर्टेबल हो ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो। आपको रेंज करनी है उतना तो रखा। अब चेस्ट को आगे पुश करते हुए हमें नीचे जाना है। अब दोनों हाथों को ब्लॉक पे रख के कमर को देखना है कि कैसी सीधी है और सामने की तरफ देखना है और स्टे करना है। अब धीरे से पूरी बॉडी को ड्रॉप कर देना है जमीन की तरफ। हथेलियों को भी जाने दो, पाम को जाने दो फ्लोर की तरफ एंड ड्रॉप करना है पूरी बॉडी को। अब वापिस से नॉर्मल सीधा देखना है और यहाँ से आपके राइट पैर को ऐसे पीछे लेके जाना है। 2.5 फुट डिस्टेंस करेंगे। दोनों नी को स्ट्रेट करके आपको ड्रॉप करना है पूरा फ्लोर की तरफ अपने आप को एंड सरेंडर करते हुए वहां पे रुक जाना है। तो बैक, राइट पैर को आगे, लेफ्ट पैर को पीछे लेके जाना है। सेम वे स्ट्रेच करना है। वापिस आ जाना है बीच में, दोनों पैरों को बीच में लेके आए, कमर पे हाथ किया एंड कम अप। ओके, नाउ यहाँ से नॉर्मल खड़े रहेंगे 1 फुट डिस्टेंस। दोनों हाथों को ऊपर रेस किया और धीरे से अब हील को उठाना है। आपको एक जगह पे फोकस करके स्टे करना है। एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को रोटेट करके नीचे आ जाए। एक बार और करेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे, होल्ड करेंगे। एक्सेल करते हुए नीचे आएंगे। एक और लास्ट बार करेंगे। इनहेल करते हुए अप, होल्ड। दोनों हाथों को रोटेट करके एक्सेल करते हुए नीचे आ जाएंगे। ओके, नाउ वापस से ब्लॉक के पास खड़े रहेंगे। अब यहाँ से कमर पे हाथ रखते हुए हमें नीचे की तरफ जाना है। अब आपको फील करना है जब तक स्पाइन लॉन्ग है वहां तक ही आपको जाना है। अगर ऐसे हो रहा है तो आप रुक जाइए। जब तक स्पाइन लॉन्ग है तब तक आपको नीचे जाना है। आपको लग रहा है इससे ज्यादा नहीं होगा, वहां पे दोनों हाथों को सरेंडर करके ड्रॉप। धीरे से दोनों हाथों को कमर पे रखना है, सामने की तरफ देखना है और सिर्फ इतना ही ऊपर आना है। जहां पे आपकी बॉडी पूरी पैरेलल है ग्राउंड से, बस इतना ही आना है एंड स्टे करना है।
कम अप एंड रिलैक्स योरसेल्फ। दोनों हाथों को पीछे ऐसे इंटरलॉक कर देना है। डीप इनहेल करके एक्सहेल करते हुए नीचे जाना है, सरेंडर। जब हम आईबीएस की बात करते हैं या हम कोई भी गैस्ट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स या एसिडिटी या ब्लोटिंग की बात करते हैं, कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं, तो फॉरवर्ड बेंड्स जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। क्योंकि जब आप फॉरवर्ड बेंड करते हो तो आपके पेट पे यानी आपकी समान वायु वो एक्टिवेट होने लगती है। एट द सेम टाइम आपका मणिपुरा चक्रा वो जो है वो एक्टिवेट होने लगता है। जैसे ही आप ये फॉरवर्ड बेंड्स करने लगते हो, आपकी जठरा अग्नि है वो भी अच्छे से वर्क करना स्टार्ट कर देती है। इसके लिए जब भी हम आईबीएस की बात करते हैं तो वी गो फॉर द फॉरवर्ड फोल्ड्स, वी डू द ट्विस्टिंग, वी डू व्हाटएवर creates a good impact on your saman vayu or on your manipura chakra. Now inhale करते हुए ऊपर आ जाना है, एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को रिलीज कर देना है। अब यहाँ से ही हम जाएंगे मालासना बैठने के लिए। आपको आ जाना है, बैठ जाना है मालासन में। इन केस इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल यू कैन सिट ऑन द ब्लॉक एज पे, ब्लॉक के एज पे भी ऐसे बैठ के आप मालासन कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि आप कंफर्टेबल हो तो आप बिना ब्लॉक के भी कर सकते हो। अब यहाँ से दोनों लेग को रिलीज करना एंड सिट करना है बटरफ्लाई में। होल्ड करना है बटरफ्लाई एंड स्टे देयर। अब धीरे से फॉरवर्ड बेंड के लिए जाना है आपको। धीरे धीरे बॉडी को लूज छोड़ देना है। अब दोनों हाथों को सामने की तरफ जाने देना है एंड स्टे करना है। इनहेल करते हुए वापस ऊपर आ जाना है। दोनों हाथों को पीछे रख के स्ट्रेच करना है। एक बार और करेंगे। दोनों हाथों से पैर पकड़ के धीरे से नीचे की तरफ। अब यहाँ पहुंचने के बाद हाथों को आगे स्ट्रेच, वॉक एंड स्टे। आपको उतना ही ज्यादा आगे जाना है जब तक आप कंफर्टेबल हो। स्लोली कम बैक। दोनों हाथों को पीछे रखना है एंड स्ट्रेच करना है। कम बैक एंड धीरे से दोनों पैरों को ज्वाइन करके लेग्स को आपको स्प्रेड कर देना है, आपके सामने स्ट्रेट कर देना है। अब यहाँ से आपको लेफ्ट राइट लेग को बेंड करके आपके ये जो फिट है उसको ऐसे थाइस पे रख के सेटल हो जाना है। मैं एक्चुअली पहले आपको लेफ्ट करके दिखाती हूँ तो आपको दिखेगा। सो ये लेफ्ट को मैंने ऐसे रखा, राइट मेरे सामने है। अब मैं यहाँ से दोनों अंगूठे को पकड़ के स्ट्रेच कर रही हूँ और सामने देख रही हूँ। धीरे धीरे आप हील को पकड़ने की कोशिश करके धीरे धीरे सरेंडर करेंगे फ्लोर की तरफ।
स्लोली ऊपर आ जाना है और आपके राइट पैर को राइट साइड ऐसे जाने देना है। अब आपने राइट साइड जाने दिया, राइट हाथ से उसके अंगूठे को पकड़ लो, राइट हाथ से राइट अंगूठे को पकड़ के लेफ्ट हाथ को ऊपर से जाने देना है, होल्ड करके स्ट्रेच करना है। धीरे से ऊपर आ जाना है। अब राइट पाम को लेफ्ट नी पे थाई पे रख के स्ट्रेच करना है साइडवेज, क्योंकि जब आप फॉरवर्ड बेंड करते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके लोअर बैक पे प्रेशर क्रिएट होता है, बट जैसे आप ये काउंटर पोज करते हो आपको इजी फील होने लगता है। नाउ कम बैक इन द सेंटर। वापिस दोनों पैर को आगे स्प्रेड कर देना है। अब हम राइट करेंगे बिकॉज पहले हमने लेफ्ट किया था, तो राइट पैर को फोल्ड करेंगे दोनों हाथों से, टो को पकड़ेंगे एंड सामने देखेंगे। अब धीरे धीरे हील को पकड़ के धीरे धीरे नीचे जाने की कोशिश करेंगे। सरेंडर करेंगे कंप्लीटली। जहां पे भी आप पहुंचे हो बस आपको सरेंडर करना है, अपने आप को पूरा लूज छोड़ देना है। अब धीरे से आपको ऊपर आ जाना है। अब आपको लेफ्ट पैर को जाने देना है लेफ्ट की तरफ। अब लेफ्ट हाथ से आपको पकड़ना है अंगूठे को और ऊपर से दूसरा हाथ जाएगा और स्ट्रेच करना है एंड स्टे करना है। नाउ कम बैक। जैसे हमने पहले किया था वैसे अभी भी ट्विस्ट करेंगे। एंड नाउ कम बैक इन द सेंटर। दोनों लेग्स को आपके सामने स्ट्रेच कर देना है। दोनों हाथों को साइड में रखें। थोड़ा सा पैरों को रिलैक्स करना है। तो कैसे रिलैक्स करेंगे हम? राइट टो को ऐसे जाने दिया, लेफ्ट को जाने दिया, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट। अब दोनों लेग्स को सर्कल करेंगे धीरे धीरे से राइट की तरफ एंड लेफ्ट की तरफ। ओके, नाउ दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे, डीप इंहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए दोनों अंगूठों को पकड़ लोगे एंड आर्च करोगे बैक एंड सामने देखना है। अब धीरे धीरे सरेंडर करेंगे फ्लोर की तरफ। तो हम क्या करेंगे, अगर पकड़ सकते तो व्हील्स को पकड़ के सरेंडर करेंगे। ये करते हुए वापस ऊपर आ जाना है। एक्सहेल करके दोनों हाथों को पीछे रख के काउंटर पोज करेंगे, आर्च योर बैक।
एक बार और सेंटर में आके सेम करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर रेस करेंगे, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड में जाएंगे एंड स्टे। स्लोली कम अप, दोनों हाथों को पीछे रख के स्ट्रेच करेंगे। रिलैक्स एंड रिलीज। दोनों पैरों को बेंड करके दोनों पैरों को एक अच्छा सा हग देंगे। पैर को जाने दीजिए आपके नीज की तरफ, और जितना आप कॉम्पैक्ट हो सकते हो कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। स्पाइन को लॉन्ग रखेंगे एकदम। Slowly look up and relax yourself. Now slowly and gently we will lie down on the mat. आपको आपके कमर पे सो जाना है। दोनों हाथों को स्ट्रेच करना है, दोनों नीज को बेंड करना है। अब दोनों नीज को जाने दीजिए राइट की तरफ। Now come back in the center, other side. अब हमको जो योगा बेल्ट हमने मेंशन किया हुआ है उसकी नीचे, अगर आपके पास योगा बेल्ट नहीं है तो आप लोग कॉटन दुपट्टा भी यूज कर सकते हो। नाउ कम बैक। सो जिसके पास नहीं है आई एम गिविंग यू टाइम टू ब्रिंग। तब तक जिसके पास है दे कैन ओपन देयर नीज इन अ बटरफ्लाई एंड रेस्ट फॉर सम टाइम। जब तक सबके पास योगा बेल्ट या कॉटन दुपट्टा होगा फिर स्टार्ट। नाउ जॉइन योर लेग्स। अब यहाँ से आपको सिर्फ लेफ्ट लेग को ऐसे स्ट्रेच करना है, राइट लेग को बेंड रखना है एंड अब हम योगा बेल्ट से स्ट्रेच करेंगे। तो आपको बेल्ट को या कॉटन दुपट्टा को ऐसे बेस पे रख देना है आपके फुट के एंड ऐसे पुल करना है। अंगूठों को अपनी तरफ मोड़ देना है एंड होल्ड इट, होल्ड करना है। एंड दूसरा पैर है वो एक्टिव है, अगर आप देखोगे तो उसके टोज भी मेरी तरफ टर्न है और राइट पैर के टोज भी मेरी तरफ टर्न है। होल्ड करके स्टे कीजिए फॉर 30 सेकंड्स। नाउ बेल्ट को अपने दोनों राइट हाथ से पकड़ लीजिए, लेफ्ट हाथ को ऐसे फ्री कर देना है और अब आपके पैर को राइट की तरफ जाने देना है। बट जब राइट की तरफ जाएगा तब आपको मेक श्योर करना है कि आपका लेफ्ट पाव है वो पूरा स्ट्रेट रहे और आपके सामने रहे। होल्ड करके रखेंगे यहाँ पे भी 30 सेकेंड्स।
अब वापिस लेके आना है पैर को सेंटर में, दोनों हाथों से बेल्ट पकड़ के पुल करना है आपको सेंटर। अब आपको बेल्ट को पकड़ना है सिर्फ लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड को फ्री कर देना है और अब आपके पैर को आने देना है लेफ्ट की तरफ, बट आपको उतना ही आने देना है जब तक आपका लेफ्ट लेग है वो स्ट्रेट है। आपकी बॉडी जब तक टिल्ट नहीं हो रही है तब तक इस लेग को आने देना है एंड होल्ड करके रखना है। अगर आपको ये अनकंफर्टेबल लग रहा है तब आप इसके नीचे ब्लॉक को भी यूज कर सकते हो। यू कैन कीप द ब्लॉक हियर and let the leg go like this and hold it. Now slowly come back in the center and relax. रिलैक्स करने के बाद पैर को थोड़ी टाइम के लिए वहीं रहने दो। आपको चाहिए तो आप नीचे से ऐसे अपने थाइस को पकड़ सकते हो एंड टोस को अपनी तरफ पुल करना है। दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर योर नीज। नाउ बेंड योर नी, hug your knee, relax. Now same अदर साइड, लेफ्ट लेग को आपको बेंड कर देना है, बेल्ट लेके आपको प्लेस करना है बेल्ट को फेस पे, धीरे से स्ट्रेट करना है एंड अपनी तरफ पुल करना है। राइट लेग एक्टिव है, दोनों टोज आपकी तरफ टर्न करके रखना है एंड स्टे करना है। और बेल्ट को अब राइट हैंड को रिलीज करना है, बेल्ट को लेफ्ट हाथ से पकड़ के लेफ्ट की तरफ आने देना है। आपका राइट लेग एक्टिव है और लेफ्ट लेग भी एक्टिव है, फील करना है दोनों लेग्स आपके एक्टिव है। सेंटर में आ जाना है, एक बार सेंटर में वापस थोड़ा सा पुल करना है आपको और उसके बाद बेल्ट को राइट हाथ से पकड़ के राइट की तरफ जाने देना है। जैसे हमने ब्लॉक यूज किया था वैसे राइट साइड पे ब्लॉक यूज करेंगे एंड होल्ड। कम बैक इन द सेंटर एंड पुल टुवर्ड्स यू। एक बार और पुल करेंगे, अब धीरे से बेल्ट को रिलीज करना है और नी को हक करना है।
और अब आपको यहाँ से आपके थाइस को हग करके नी को स्ट्रेट कर देना है, टोस को अपनी तरफ टर्न करना है एंड होल्ड करना है। एंड रिलैक्स, पैरों को स्ट्रेच कर देना है। नाउ दोनों नीज को आपको बेंड करना है। दोनों हाथों को आपके साइड में रख के सेतुबंध आसना करना है। अगर आप आपके एंकल्स पकड़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं पकड़ सकते हो तो दोनों हाथों को साइड में रखना है। इनहेल करते हुए लिफ्ट योर हिप अप एंड स्टे। स्लोली कम डाउन एंड रिलैक्स। एक बार और करेंगे। दोनों एंकल्स को पकड़ना है, इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ जाना है एंड लिफ्ट योरसेल्फ अप, स्टे। Now slowly come down and relax. दोनों हाथों को रिलैक्स करने रखिए। नाउ राइट एंकल को लेफ्ट थाई पे ऐसे रख दीजिए एंड आपकी तरफ पुल करना है, हग करना है आपको। स्टे करेंगे यहाँ पे। अब दोनों हाथों को रिलीज करो, पैरों को वैसे ही रख के दोनों पैरों को जाने देना है राइट की तरफ। Come back into center and change your leg. अब राइट एंकल लेफ्ट एंकल को रखना है राइट थाई पे एंड हग करना है। दोनों हाथों को रिलीज करना है आपको और दोनों पैरों को जाने देना है लेफ्ट की तरफ और आपका जो फेस है वो जाएगा राइट की तरफ। Come back in the center। अब दोनों लेग्स को स्ट्रेच कर देना है आपको। दोनों हाथों को भी साइड में स्ट्रेच कर देना है। पूरी बॉडी को सरेंडर करना है और एकदम से लूज छोड़ देना है टुवर्ड्स द फ्लोर। धीरे धीरे आंखों को बंद करते हुए अपने आप को कंप्लीट रिलैक्सेशन, कंप्लीट सवासना वाले जोन में ले जाना है। सवासन करना Not audible, ma'am. Okay, sorry. I'm saying now you just go to Savasana, close your eyes and start relaxing
each and every body part of yours. Now slowly and gently make movement of your fingers, of your toes. Turn towards the right side. Make a figure of your hand and rest. Now with the support of your palm, sit in a crossed legs with eyes completely closed. Now place both your palm on your knees and let's start with the Samavritti Pranayama, जिसको हम इक्वल ब्रीदिंग भी बोलते हैं. आप जितना इनहेल कर रहे हो आप उतना ही एक्सेल करोगे. अगर आप 4 काउंट्स इनहेल कर रहे हो तो आप 4 काउंट एक्सेल करोगे. कंप्लीट फोकस ऑन योर ब्रेथ. Now start with Samavritti Pranayama. 8 to 10 rounds of Samavritti Pranayama. Equal breathing. आप जितना इनहेल कर रहे हो आपको उतना एक्सेल करना है. अगर आप 2 काउंट इनहेल कर पा रहे हो तो आपको 2 काउंट एक्सेल करना है. Now relax everyone. Now the same pranayama we're going to do with the Antar Kumbhak. Antar Kumbhak means we are holding the breath. So आपको inhale करना है 4 counts या आप 3 counts, जो भी आपका inhale का count है उतने ही count आपको breath को hold करके रखना है और उसके बाद आपको exhale करना है. तो मैं अगर 3 times inhale कर रही हूँ, for example inhale 1, 2, 3, then hold for 3 counts 1, 2, 3 और उसके बाद एक्सेल करेंगे 1, 2, 3. वापस से इनहेल करेंगे एंड होल्ड करके रखेंगे ब्रेथ को और एक्सेल करेंगे. So this is called Samavritti Pranayama with Antar Kumbhaka. Let's start everyone. Comfortable. Shoulders completely relaxed and start.
Continue, everyone. Now, after exhalation, completely relax yourself. Now start breathing normally, जैसे हम रोज ब्रीथ करते हैं बस वैसे ब्रीथिंग करना है और उसके बाद हम एक और वेरिएशन करेंगे. Now the next variation will be अंतर कुंभका. आपको इनहेल करना है 3 काउंट्स, एक्सहेल करना है 3 काउंट्स और उसके बाद आपको ब्रेथ को होल्ड करके रखना है 3 काउंट्स. सो जब आप एक्सहेल करके ब्रेथ होल्ड करते हो उसको बोलते हैं बाह्य कुंभक और जब आप इनहेल करके होल्ड करते हो तो उसको बोलते हैं अंतर कुंभक. अंतर कुंभक ऑलरेडी हमने कर लिया है. सो नाउ विल स्टार्ट विद द बाह्य कुंभक. इनहेल करना है, आपको सांस को भरना है, सांसों को छोड़ना है और छोड़ने के बाद आपको ब्रीदिंग को होल्ड करके रखना है. लेट्स स्टार्ट एवरीवन. Now, after exhalation and holding your breath, once you are done with hold your breath, start breathing normally. Now rub both your palms. Generate heat and let this heat go on your eyes. Now keep both your palms on your head. Let it go on your neck, on your arms, on your back, on your legs, on your thighs, on your toes, all over. Feel it and bring your hands in Namaste. Surrender yourself to the Mother Earth. So just take a forward bend. Now come up. Slowly and gently open your eyes and hands in Namaste. Have a wonderful, wonderful Sunday, everyone. And I'll see you all on Monday, that is tomorrow. Thank you, ma'am. And tomorrow's session will be about the turns and twists. So it will really going to help you to manage your IPS and all the problems which are related to your stomach. Because tomorrow we're going to have a session which will help you to have a more relaxation for your IBS. Thank you so much, everyone. I'll see you all tomorrow on Monday. Thank you, ma'am. Most welcome. Thank you so much. I have a question. Hello. Hello. Yes, you are audible. Can you be a little louder? Sorry? मैम मेरा मतलब ये क्वेश्चन है कि जो योगा आप करवा रहे हैं तो I'm not able to hear you. हेलो Yeah, tell me.
हाँ मैम, मैं पूछ रही हूँ कि जो कंटिन्यूअस आप योगा मतलब करवा रहे हैं, तो वो हमें कंटिन्यूअस करना चाहिए या फिर जैसे वन डे के गैप में है तो वैसे ही करना चाहिए अभी? नहीं, सी कैसा है ना, आप एवरी डे भी कर सकते हो, मंडे टू फ्राइडे भी कर सकते हो, मंडे टू सैटरडे भी कर सकते हो, बट कैसा है ना, आप जो भी कर रहे हो वो प्रॉपरली होना चाहिए। सी there's a because आप एक स्पेसिफिक योगा की तरफ देख रहे हो, यू हैव सम इश्यूज एंड फॉर दैट यू आर डूइंग इट। तो अगर आप Yes. थ्राइस अ वीक भी करते हो तो भी इट्स मोर देन इनफ, एंड 3 days यू कैन जस्ट डू वॉकिंग और यू कैन डू एनी अदर एक्टिविटी। बट आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिसमें बहुत सारा प्रेशर क्रिएट हो, या यू नो बहुत सारी बॉडी थक थक जाए, मतलब जी। फटीक हो जाए बॉडी, वैसा कुछ भी मूवमेंट बॉडी में नहीं करना है। आपको वैसा कुछ करना है जो आपको फ्रेश भी रख रहा है और एनर्जेटिक भी रख रहा है। सो अब तो रेन है, अदरवाइज यू कैन गो फॉर वॉक्स, यू कैन प्ले एनी स्पोर्ट दैट वे, यू कैन go for swimming. Yeah. Okay. Yeah. Thank you, ma'am. Your Most session welcome. was really good. Thank you so much. Thank you.